Hi everyone, this is Megha. Now I'm going to start a new chapter that is reproductive health. Let's see the various topics in this. First one is the problems and strategies related to reproductive health. Then about population explosion, a rapid increase in the population which is a major concern nowadays. Then about various birth control measures and about sexually transmitted diseases and about infertility and assisted reproductive technologies. So these are the topics which we are going to learn in this chapter, but in this video I will cover these two topics, reproductive health and population explosion. So first is about reproductive health. What do you mean by it? In a simple way, reproductive health refers to a state of healthy reproductive organs with its normal function. ओके ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई. हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, देन द पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. But in a broader way, the definition is given by WHO, World Health Organization, ने कहा कि भाई it is defined as a total well-being in all aspects. ऐसे ही नहीं है केवल रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने चाहिए ऑर्गन्स, हर एक एस्पेक्ट्स में पर्सन जो है हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी, बिहेवियरल भी और इमोशनल भी. ठीक है, फिजिकली आप जान गए, फिजिकली फिट होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए. देन अबाउट सोशली कैसे इंटरेक्ट करता है, बिहेवियर कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, वो सब भी मैटर करते हैं. अगर एक हेल्दी रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी बनानी है तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड, isn't it? India was the first country to take in the initiative action plan related to this. So first plan, it started in the year 1951, that is family planning. Okay, this is very important. The year is important, 1951, and the program name is family planning. In this lot of changes are taken place. इसमें बहुत सारे changes हुए. अब इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? RCH. द फुल फॉर्म इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ओके, इस प्रोग्राम के जो मेजर टास्क थे वो थे, फर्स्ट वन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, देन टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू बिल्ड द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. तो ये जो थे मेजर टास्क थे RCH प्रोग्राम के. ठीक है, सो क्या क्या आपको ध्यान रखना है? पहला तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट दिस एक्शन प्लान. दैन फैमिली प्लानिंग स्टार्टेड इन विच ईयर? इन द ईयर 1951. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH? दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, isn't it? Now let's see the measures taken by the government and non-government agencies. तो इन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स और प्रिंट मीडिया का यूज़ किया था. ठीक है, दैन दे हैव इंट्रोड्यूस सेक्स एजुकेशन एट द स्कूल लेवल. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज नाउ डेज देयर आर मेनी मिथ्स रिलेटेड टू सेक्स, राइट? मेनी पीपल थिंक्स दैट masturbation is not good, and if you use washed condoms, that is good for us. Okay, condoms cannot be washed and they cannot be reused because the latex sheet by which they are made of, it gets thin and it can break. Okay, it can burst. So there are many myths. Okay, so that should be eliminated. वो myths हटाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सेक्स एजुकेशन स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया गया. ओके, to provide proper information about STDs, sexually transmitted diseases, and about reproductive organs, and also about the adolescent changes. Okay, at the age of puberty, a lot of changes occurs in males and females. Okay, so these changes are due to various hormones. तो वो जो एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि क्यों हो रहे हैं ये चेंजेस और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं. ठीक है, then educating people, especially the fertile couple, about the birth control measures, then about the care of pregnant mother and child, importance of breastfeeding. Starting 6 months feeding is very important for the child, right? Then about equal opportunities for male and female child. So these are some of the measures taken. Okay,
Now move on to the next topic, that is population explosion. Population क्या होता है? Population is the total number of individual of species. Okay, ये तो बहुत easy है, total number of individuals. Then population explosion. Explosion से क्या जानते हैं आप? Rapid increase होना. किसका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? पॉपुलेशन का. तो रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Then about PGR, population growth rate. It is defined as the rate at which number of organism in a population increases. किस रेट से ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ रहा है. तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज P2 minus P1 upon P1 into N into 100. This is the formula to calculate population growth rate. Okay. P2 is the population is present census. This time what is the population? And P1 is the population in previous census. N is years. You know that after 10 years the population is calculated. So N is 10 years. Now according to 2001 census, PGR is 1.7%. And it increases in the year 2011. It is around 1.25%. Okay. तो इसी रेट से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहेगी तो जो डबल कितने ईयर में हो जाएगी? 33 ईयर में. एक्सपेक्टेड डबलिंग टाइम इज़ 33 ईयर्स. मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ऑफ यूपी, whereas in minimum is of Sikkim. Okay, so let's see the increase in the population of the world. पहले वर्ल्ड की देखते हैं कि 1900 में it is around 2 billion. And it increases to around 6 billion in the year 2000. Now if we talk about India, it is around 350 million in the year 1947, which increases to about 1 billion in the year 2000. ठीक है, तो आप देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है. एट अ ट्रिमेंडस रेट इट इज़ इंक्रीजिंग. एवरी 6 पर्सन इज़ इंडियन. ये तो बहुत शेमफुल बात है इंडिया के लिए. तो इसीलिए भाई बर्थ कंट्रोल मेजर्स हमें लेने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में एवरीथिंग. नाउ वी विल सी द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. क्यों बढ़ रही है ये पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से? सो पहला है कि रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट. डेथ रेट जो है कम होता जा रहा है क्योंकि भाई आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, स्टोरेज फैसिलिटी हो बढ़ गई है, बहुत टाइम तक हम वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल. ओके, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन दी डेथ रेट. तो रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट स्पेशली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR और MMR ये याद रखिएगा, इनमें डिक्लाइन हुआ है. क्योंकि पहले क्या होता था, मदर जब प्रेग्नेंट होती थी उस टाइम उसकी डेथ हो जाती थी, बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया, ये पहले ज़्यादा होता था. बट नाउ अडेज हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं कि ये कंट्रोल किया जा रहा है. ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, रैपिड डिक्लाइन हो गया इन द डेथ रेट. इजंट इट? Now this is very important. Natality and immigration leads to increase in the population. Natality means birth, mortality means death. ठीक है, natality means birth rate, mortality means death rate. Immigration means कि permanent entry of a person from outside to an particular area. Are you getting my point? Immigration का मतलब हो गया परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू एन एरिया. कोई बंदा यहाँ रहता है, उसकी फैमिली यहाँ पे है, वो शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई ना, तो ये हो गया इमिग्रेशन. और एमिग्रेशन इसका अपोजिट हो गया. एमिग्रेशन हो गया परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल आउटसाइड. ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया. सपोज द पर्सन इज लिविंग ओवर हियर, इट मूव्स टू दैट एरिया, तो पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी उस एरिया की. ओके, तो नेटलिटी और इमिग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ेगी और मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन से डिक्रीज होगी. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? नाउ लेट्स सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन. भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी. देयर शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर. ओके, इन सब की कमी हो जाएगी.
अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, हर एक पर्सन को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, और फैमिली में भाई जॉब नहीं होगी और बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो भाई पॉवर्टी तो ऑब्वियसली आ जाएगी ना, गरीब हो जाएंगे लोग बाग। Now let's see the steps taken by government to control the population growth. अब इस population को control करने के लिए क्या क्या steps लिए गए? फर्स्ट इज मैरिज एज फिक्स कर दी गई, गर्ल्स की 18 ईयर्स, बॉयज़ की 21 ईयर्स। ठीक है, इससे पहले आप शादी नहीं करेंगे, वो इलीगल माना जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था। सेकेंड स्टेप इज़ द इंसेंटिव टू स्मॉल फैमिलीज, जो छोटी फैमिली हैं उनको इंसेंटिव दिया गया। थर्ड इज ऐड किए गए टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, भाई पॉपुलेशन कैसे कम करी जाए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया, पोस्टर्स लगाए गए जगह जगह। और एक स्लोगन आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, वो सबसे अच्छा स्लोगन है भाई। 2 बच्चे काफ़ी हैं, एक भी हो तो चलेगा, क्योंकि आजकल अर्बन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा 1 बेबी इज़ इनफ। ओके, तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बहुत अच्छा स्लोगन था, हम दो हमारे दो। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए गए हैं टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। होप you like this video. Share with your friends and subscribe to my channel and hit the bell icon to get the updates. Thank you.